Hello everyone, welcome to your channel Engineering Mathematics Tutorial, and today we will start a topic of first semester. The name of the topic is binomial theorem. Yes, our today's topic is what? Binomial theorem. So let's learn about binomial theorem. In binomial there are two terms. First one is bi and second one is nomial. First one is bi and second one is nomial. So bi means two and nomial means term. What is the meaning of binomial? That is bi means two and nomial means terms. So an algebraic expression having of two terms is called a binomial expression. ठीक है? So what about binomial theorem? So in binomial theorem there are two terms. And there is an expression having two terms. Such expression is known as binomial expression, like x plus a. So in x plus a there are two terms. There are two nomials. First one is x and second one is a. X minus 1 by x. So in an x minus 1 by x, there are two terms. First one is x and second one is 1 by x. And they are joined with minus sign. And third example, x plus 1 and so on. But our topic is what? Our topic is binomial theorem. हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम. तो बाइनोमियल थ्योरम जानने से पहले हम लोगों ने जाना कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है. Before knowing the binomial theorem, at first we know about binomial expression. So such an expression having two terms known as binomial expression. And what about binomial theorem? So binomial theorem is a general algebraic formula by means of which any power of a binomial expression can be expressed as a series. Clear? चलिए, बाइनोमियल थ्योरम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम एक जनरल फॉर्मूला है. बाइनोमियल थ्योरम इज अ जनरल अलजेब्राइक फॉर्मूला इन विच और बाय मीन्स ऑफ विच any power of a binomial expression can be expressed as series. तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि सीरीज और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है. ठीक है, सीरीज और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है. सीरीज किसको बोलते हैं हम लोग? सबसे पहले इसके लिए हमने सीक्वेंस जानना होगा. एट फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज अ सीक्वेंस. तो अ सीक्वेंस मे बी इन एपी, जीपी और एचपी. अ सीक्वेंस कैन बी इन एपी, arithmetic progression. Arithmetic progression means what? If common difference is same. GP geometric progression, HP harmonic progression. Clear? तो आपका अगर एक AP में है सपोज 2, 5, 8, 11, तो ये आपका AP है. ये आपका AP क्यों है? This progression is in AP. Why? Because the common difference between two consecutive terms are same. So 5 minus 2 equal to 3, 8 minus 5 equal to 3, 11 minus 8 equal to 3. So in each cases we can say that common difference between two consecutive terms are same. So this progression is in AP. Now this is a sequence. This is what? This is a sequence. But if we write this sequence like 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus ... then this will be a series. Clear? Means if comma is replaced by positive sign, then such sequence is known as series. अगर इस कॉमा को आप प्लस साइन से रिप्लेस करते हो तो ये आपका क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा. और व्हाट अबाउट बाइनोमियल थ्योरम? सो बाइनोमियल थ्योरम क्या है? थोड़ा सा ध्यान देना. यहां पे आपका बाइनोमियल थ्योरम BT. ठीक है,
सबसे पहले हमें जानना है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो लाइक x प्लस 1 बाय एक्स बाइनोमियल एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन मतलब तो आप समझते हो, क्लास 8-9 में आपने एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है। कोई भी अलजेब्राइक जब कोई वेरिएबल डिफरेंट पावर के टर्म्स में एक साथ ज्वाइन होता है, ईदर ऑफ पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, देन सच एक्सप्रेशन इज नॉन एज such formula is known as expression. And if in this expression there are two terms, if in this expression there are two terms only, then such expression is known as binomial expression. Like here x and 1 by x, so there are only two terms, first term, second term, so this is known as what? Binomial expression. And what about binomial theorem? So if we want to express 1 plus 1 by x, clear? Suppose square of this, so x plus 1 by x का होल स्क्वायर, so इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर प्लस 2ab means 2 into x into 1 by x, so this become what? x square plus 1 by x square plus 2, so x plus 1 by, ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, दिस इज एन बाइनोमियल एक्सप्रेशन। और ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन का इंडेक्स क्या है? 2 है। अब जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे देन वी विल गेट दिस, हमें ये मिलता है, ठीक है। अब इसी x प्लस 1 बाय एक्स को, यानी कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन को का जब कुछ इंडेक्स हो, पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी इंडेक्स हो, तो उस इंडेक्स के टर्म में उसको जो हम एक्सप्रेस करते हैं तो किस टर्म में करते हैं? दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब प्लस साइन के साथ सीरीज में वो आगे बढ़ता है। अब आप बोलोगे मैम ये सीरीज क्यों है? बिकॉज यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर है प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है प्लस 2 है, मीन्स देयर आर 3 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? देयर आर 3 टर्म्स, ठीक है। यहाँ हमारे पास कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। अब ये 3 टर्म्स को हम लोग प्लस प्लस साइन से आगे बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा क्या है? सीरीज है। तो हम लोगों ने देखा कि बाइनोमियल थ्योरम का डेफिनेशन क्या था? तो बाइनोमियल थ्योरम एक जनरल अलजेब्राइक फॉर्मूला होता है जिसमें क्या होता है, जो भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है उसको हम सीरीज के टर्म में दर्शाते हैं, विच वी कैन एक्सप्रेस एज अ सीरीज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। x प्लस ए होल टू द पावर n, सबसे पहले ये हमारा क्या है? एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। x प्लस ए ये हमारा क्या है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। टू द पावर n, यहाँ इंडेक्स क्या है? n है। अब ये ध्यान देना, ये x प्लस ए यहां हमारा एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन का इंडेक्स क्या है? n है। अब इसे हम लोग सीरीज के टर्म में दिखाते हैं, तो सीरीज के टर्म में ऐसे दिखाते हैं nc0 x टू द पावर n a टू द पावर 0, ठीक है। आप यहां देख रहे हो देयर आर सो मेनी टर्म्स आर देयर, ओके, सो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड डॉट 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 प्लस दिस टर्म। सो आप ध्यान देना यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट है और n तक गया है, यानी कि यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है? n+1 टर्म्स है। अब आप बोलोगे n+1 टर्म्स कैसे हैं? आप यहाँ देखो, जब यहाँ इंडेक्स 2 था तो यहाँ पर कितने टर्म्स आए? 3 टर्म्स आए। अगर यही इंडेक्स आपका क्या होता? अगर यही इंडेक्स आपका अगर x प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब होता तो यहाँ पर कितने टर्म्स आते? तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b मीन्स व्हाट? 1 बाय एक्स प्लस 3ab स्क्वायर। तो टर्म्स कितने आए? मेरे को ये नहीं देखना है कि व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, हमें ये नहीं देखना। वी जस्ट वांट टू सी दैट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। सो इफ इंडेक्स इज 3 देन देयर विल बी 3 plus 1 terms, is it? 3 plus 1 means what? 4 terms. So 1 2 3 4, so there are 4 terms here. क्लियर? तो यहां हमारा अगर इंडेक्स सपोज यहां पर 9 होता, सपोज यहां पे क्या होता? इंडेक्स 9 होता, तो हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर? तो अब यहां पर कितने टर्म्स होंगे? तब यहां पे हमारा 9 है तो 9 plus 1 यानी कि 10 टर्म्स होंगे। सिमिलरली हमारा क्या है? x प्लस ए टू द पावर है n, तो इसके एक्सप्रेशन में सीरीज में कितने टर्म्स होंगे? तो इसके एक्सप्रेशन में सीरीज में आपके n+1 टर्म्स होंगे। क्लियर? चलो जी, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कॉम्बिनेशन के बारे में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सप्रेशन होता है
और उसका जो सीरीज में एक्सपेंशन होता है, बाइनोमियल का जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन मीन्स व्हाट, ये आपका एक एक्सप्रेशन है, 3 टर्म्स का एक्सप्रेशन है, ये आपका 4 टर्म का एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इस मतलब कि ये भी एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन का अगर इंडेक्स 2 था तो इन दैट केस इसका एक्सपेंशन 3 टर्म्स में हुआ। अगर यहाँ पे 9 है तो इसका एक्सपेंशन यहाँ पे 10 टर्म्स में होगा, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये है कि जो एक्सपेंशन होता है, जो विस्तार, एक्सपेंशन मीन्स व्हाट, विस्तार, तो जो विस्तार होता है उस विस्तार में आपका कैसे हम लोग उसका विस्तार करते हैं, ठीक है, मतलब उसका एक्सपेंशन हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग उसका एक्सपेंशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन, विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन क्या है, आप देखो यहां पे, सपोज अगर आपके पास x प्लस वाई होल टू दी पावर n है, ठीक है, ध्यान देना, मैं इसे एक बार लिखती हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हम लोग लिखते हैं। ये स्टार्ट होता है NC0 फर्स्ट टर्म, यानी x टू दी पावर x टू दी पावर, दोनों को माइनस करो आप, इट मीन्स n माइनस 0, एंड y, एंड सेकेंड टर्म क्या हमारा y, सो y टू दी पावर आपका जो r का वैल्यू है वो मैंने आपको बताया था ना, NCR का मतलब क्या है, इफ वी वांट टू सेलेक्ट randomly r things from a set of n things, then this selection is known as combination. Here randomly word is very important, but if we will write NPR, it means we are going to select r things or in ordered way from a set of n things, and or we also can say that from n things we want to select r things as an orderly arrangement. But in the case of combination we are randomly choosing. We are what? We are randomly choosing. Randomly means what? Unorderly. We are unorderly choosing r things from a set of n things. So this is called combination. If we are selecting r things from n things in randomly or unordered way, then this is combination. And if we are selecting r things from n things in ordered way, then this is called permutation. And if we are talking about binomial theorem, then x plus y whole to the power n equals to what? Equals to NC0 x to the power, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, n minus 0 and y to the power, y means what? सेकेंड टर्म, ठीक है, ये सेकेंड टर्म y to the power आपका r means what? 0, then plus NC1, देखिए एकदम वो मतलब क्या होता है, प्रोग्रेशन वाइज आगे बढ़ रहा है। आप ध्यान दो, NC0, देन आपका क्या आया, प्लस के बाद NC1, ठीक है, x टू दी पावर माइनस करके यानी कि n माइनस 1, और y टू दी पावर नीचे वाला यानी कि 1, अगेन प्लस NC2 x टू दी पावर n माइनस 2, y टू दी पावर नीचे वाला यानी कि r, ठीक है, देन अगेन प्लस NC3 x टू दी पावर सब्ट्रैक्ट करो, सो इट्स n माइनस 3, एंड y टू दी पावर आपका जो r का वैल्यू है वो r मीन्स व्हाट, 3, एंड ये चलता जाएगा, ठीक है। आपका ये खत्म कहां पे होता है, तो NCN। मैंने आप लोगों को बताया था जब कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है NCN+1। इज दिस पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। कभी भी r का वैल्यू, ये हमारा हमेशा NCR जो होता है, r is always less than or equal to n। r का वैल्यू हमेशा n से छोटा होगा या इक्वल होगा। r का वैल्यू कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता है। सो दिस NCN+1 नेवर पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ा नहीं हो सकता है। तो आप इसको स्टॉप कहां पर करोगे, NCN, जैसे ही ये दोनों सेम मैच हो जाएगा आप इसको स्टॉप कर देना है आपने, ठीक है। सो NCN x टू दी पावर n माइनस n एंड y टू दी पावर n, क्लियर।
अब आप ध्यान दो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसे आप, हाँ जी, तो इस NC0 को आप क्या बोल सकते हो? NC0 चलिए निकाल के देखते हैं। NC0, ठीक है। NC0 मीन्स व्हाट? n का फैक्टोरियल बाय 0 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 का फैक्टोरियल। तो ये n का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल मीन्स 1 और n माइनस 0 यानी कि n। तो n कैंसिल हो गया, आपका क्या बच गया? 1। तो सिमिलरली ये आपका इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? NC0 का वैल्यू हो जाएगा 1 और किसी का भी पावर 0, इसका भी वैल्यू क्या होता है? 1। तो 1 इंटू 1 हो गया और ये x टू दी पावर n माइनस 0 यानी कि x टू दी पावर क्या हो जाएगा? n माइनस 0 मीन्स ओनली x टू दी पावर n। तो 1 इंटू x टू दी पावर n। तो ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा? x टू दी पावर n। अगेन NC1, तो देखिए NC1 का NC1 x टू दी पावर n माइनस 1, x टू दी पावर n माइनस 1। अच्छा, यहाँ पर मैंने a लिखा था और यहां से मैंने y से करा था, तो कोई दिक्कत नहीं, जहां पे a है वहां पे हमारा क्या होगा? y होगा। तो ये y की जगह पे, y के इन द प्लेस ऑफ y वी कैन राइट a। सिमिलरली ये NC2 x टू दी पावर माइनस करके n माइनस 2 और a टू दी पावर 2 हो गया, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा आपका? NCN। तो NCN का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप यहां पे देख पा रहे हो NCN का वैल्यू यानी कि n का फैक्टोरियल बाय पहले हमारा ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल और एक बार दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल। तो n का फैक्टोरियल बाय n का फैक्टोरियल, n माइनस n यानी कि 0 का फैक्टोरियल। तो n कैंसिल, ऊपर बच गया 1 और 0 का फैक्टोरियल मतलब कि 1। तो 1 बाय 1 मतलब क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको NC1 निकालना हो तो क्या होगा इसका वैल्यू? तो NC1 निकालना हो मतलब n का फैक्टोरियल बाय 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो n का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। फिर 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 और ये आपका n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, n बाय 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आपका n बाय 1 का वैल्यू हो जाएगा n, ठीक है। तो इस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? तो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है x प्लस a टू दी पावर n इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस NC1 x टू दी पावर n माइनस 1 a प्लस NC2 x टू दी पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला हम लोग उसी को करेंगे। सीधा सीधी हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, कि आपका x प्लस वाई का अगर मैं लिखती हूँ होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं। इसका क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग बाइनोमियल से बनाते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ बाइनोमियल। और तो हमारे ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं, फॉर्मूला देखिए क्या होता है? NC0 फर्स्ट टर्म यानी कि x 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 मतलब क्या? 2, ठीक है। एंड y टू द पावर सेकेंड टर्म y टू द पावर 0 अगेन प्लस NC1 मतलब 2C1, 0 के बाद क्या आएगा? 1 ही ना आएगा जी। चलिए, सो इट्स 2C1 x टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 एंड y टू द पावर जो हमारा नीचे r का वैल्यू है वो यानी कि 1 अगेन प्लस NCR x टू द पावर 2 माइनस 2 यानी कि 0 एंड y टू द पावर नीचे वाला यानी कि 2। सो दिस इज इक्वल्स टू 2C0। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? NC0 का वैल्यू हमेशा याद रखना, अगर r के प्लेस पे 0 है, देखिए यहाँ पे NC0 इक्वल्स टू वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ आपका कुछ भी हो, सपोज यहाँ आपका n के प्लेस पे 100 है बट आपको निकालना C0, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा? 1। और आपका NCN इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? इसका वैल्यू भी 1 होता है। कैसे होता है मैंने अभी जस्ट आपको भी सिखाया था, ठीक है। तो NCN का वैल्यू 1 होता है, अगर n का वैल्यू और r का वैल्यू, इसको r का वैल्यू बोलते हैं, ये हमारा n का वैल्यू होता है। सो NCR, ठीक है। और r का वैल्यू अगर n है मीन्स अगर दोनों सेम है तो इसका वैल्यू 1, ठीक है। लाइक अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखो n के जगह 200 C200 तो डेफिनेटली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, किसी का ही पावर 0, इसका वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 1, ये हमारा हो जाएगा सिर्फ x स्क्वायर प्लस 2C1 आप निकाल भी सकते हो या फिर 2C1 यानी कि याद रखना हमेशा NC1 का वैल्यू क्या होता है? n। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर 2C1 है, NC1 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो सिमिलरली यहाँ पर 2C1 है
तो 2c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। कैसे होगा, nc1 का वैल्यू n, तो इन द प्लेस ऑफ n वी हैव 2, सो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 2। करके देखें, चलिए इसको करके देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 का फैक्टोरियल, ये हमारा 1 का फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। सो ये हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल मीन्स 1, 2 माइनस 1 यानी कि 1 का फैक्टोरियल। सो 2 का फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, 1 का 1 और 1 का फैक्टोरियल भी 1, तो क्या फर्क पड़ता है, 2 इंटू 1 मीन्स 2 बाय 1 इक्वल टू 2। सही है, चलो। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और x का पावर 1 मतलब कि x, y का पावर 1 मीन्स y, 2xy, और जब ये दोनों सेम होता है तो वैल्यू 1 y स्क्वायर। सही है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, सो दिस। सही है ना, सेम आप किसी का भी निकाल सकते हो, यही आपका बाइनोमियल थ्योरम है। सो बाइनोमियल, बाई मीन्स 2 और नॉमियल मीन्स टर्म्स, तो एक ऐसा थ्योरम जो 2 टर्म्स के लिए हो। 2 टर्म्स कुछ भी हो सकता है, x प्लस वाई 2 टर्म्स है इसका, तो इसका थ्योरम, और आपका इंडेक्स कुछ भी हो लाइक 10 है, तो एक इजियर एक्सपेंशन 2 टर्म्स का, तो 2 टर्म्स यानी कि बाई एंड नॉमियल, तो 2 टर्म्स का जो थ्योरम है उसी को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम में जो ये कॉफिशिएंट आता है, देखो अब ध्यान से, x का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे एक्स वाई का कॉफिशिएंट क्या है 2 है, यहाँ वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है 1 है। इसी को हम लोग ना कॉफिशिएंट को हम लोग दिखाते हैं पास्कल ट्रायंगल से। तो लेट्स स्टार्ट विथ पास्कल ट्रायंगल। सो पास्कल ट्रायंगल क्या बताता है, पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, आपको ना पास्कल ट्रायंगल को अगर आप जान रहे हो ना, तो बार बार आपको कॉफिशिएंट निकालने का जरूरत नहीं है। लाइक अगर आप x प्लस y टू दी पावर मान लो 6 है, ठीक है, तो आप यहां पर क्या करोगे 6c0, फिर आपका आएगा 6c1, फिर आपका आएगा 6c2, ठीक है, फिर आपका आएगा 6c3, देन आपका आएगा 6c4, देन 6c5, देन 6c6। तो इसका कॉफिशिएंट आप निकाल भी सकते हो। ये सारे जितने भी टर्म्स है सारे का वैल्यू आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। और अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट पास्कल ट्रायंगल से भी इसका कॉफिशिएंट वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, वो देखते हैं हम लोग। आइए, सबसे पहले तो अगर आपका एक टर्म है तो आपका सिर्फ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर एक टर्म है तो सिर्फ ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका इस साइड भी जाएगा 1 एंड ये आपका इस साइड भी जाएगा 1। ठीक है, अब आप ध्यान देना, आपका ये 1 जो है ये आपका और आगे बढ़ेगा तो ये आपका 1 होगा। ये किसके लिए पता है, ये आपका है जब x टू दी पावर 0 है। यहां पे x टू दी पावर 0, आप खुद देखो, जब किसी का भी पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और वहां सिर्फ कितने टर्म है, एक टर्म है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम आप अभी बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा रहे हो, बाइनोमियल थ्योरम मीन्स व्हाट, तो बाइनोमियल थ्योरम मीन्स जहां पे 2 टर्म हो। तो ठीक है, आप इसको x का पावर 0 नहीं लिख के x प्लस, एक मिनट, आप इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस वाई टू दी पावर 0। तो x प्लस वाई टू दी पावर 0, किसी का ही पावर 0 मतलब वैल्यू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आपका 1 1, ये कब होता है, जब आपका x प्लस वाई टू दी पावर सपोज आपका 1 है, तो ये क्या हो जाएगा x का पावर 1 और y का पावर 1 यानी कि x प्लस वाई। तो x का कॉफिशिएंट क्या है 1 और y का भी कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1। अब आप यहां देखो, ये आपका 1 आया, ये आपका जैसे वैसे कैरी होगा, ये 1 कैरी हुआ, फिर 1 प्लस 1 यानी कि आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अगेन आपका ये आगे बढ़ेगा तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये किसके लिए पता है, ये आपका x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर में क्या होता है, देखो तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो आप x स्क्वायर कॉफिशिएंट है 1, देन xy कॉफिशिएंट है 2 और फिर y स्क्वायर कॉफिशिएंट है 1। सिमिलरली अगर ये और आगे बढ़ेगा तो ये आपका 1 होगा, देन 1 प्लस 2, ये दोनों मिलकर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देन 2 प्लस 1 प्लस 2 3। ठीक है, यहां एक ट्रायंगल बना दो, फिर 2 प्लस 1
यहाँ आप एक ट्रायंगल बना दो तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 3 और फिर ये आगे प्रोसीड करेगा 1 का 1। तो भाई आप देख सकते हो, आप क्या देख सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो अगर x प्लस वाई का पावर 3 होता तो इसका वैल्यू क्या होता है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब कॉफिशिएंट है 1, इस पूरे कॉफिशिएंट है 3 और इस पार्ट का कॉफिशिएंट है 3 और इस पार्ट का कॉफिशिएंट है 1। तो 1 3 3 1। ठीक है, आपको निकालने का जरूरत नहीं है। फिर आप चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक यहां आएगा, एक यहां आएगा और एक यहां होगा और ये हमारा ऐसे ही प्रोसीड करेगा 1 और फर्स्ट भी हमारा ऐसे ही प्रोसीड करेगा 1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो ये 1 ऐसे आगे प्रोसीड किया और 1 प्लस 3 यानी कि ये आपका हो जाएगा 4, देन 3 प्लस 3 ये आपका हो जाएगा 6, देन 3 प्लस 3 6, देन 3 प्लस 1 ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि अगर आपका x प्लस y का पावर 4 हो, x प्लस y का पावर आपका क्या हो 4 हो, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपका हो जाएगा x टू दी पावर 4। ठीक है, x टू दी पावर 4 प्लस यहाँ 4 है ना, तो ये हो जाएगा 4, x का पावर 1 माइनस होगा तो 4 है तो यहाँ हो जाएगा 3 और y का पावर 1, फिर अगेन प्लस यहाँ 6 है ना, तो 6, x का पावर 3 है तो इससे 1 कम हो गया यानी कि 2 और y का पावर 1 बढ़ेगा तो 1 है तो 2। ठीक है, देन अगेन प्लस ये आपका 4 है ना, तो ये आपका 4, x का पावर 1 घटेगा यानी कि x का पावर 1 होगा एंड y का पावर 1 बढ़ेगा यानी कि हो जाएगा 3, देन प्लस y टू द पावर 5। तो देखिए कॉफिशिएंट 1 4 6 4 5। ठीक है, एंड दिस ट्रायंगल इज नॉन एज पास्कल्स ट्रायंगल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल। यही हमारा कहलाता है पास्कल ट्रायंगल। तो मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया था, आप देखो थोड़ा सा, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था क्या, ये इन सारे का मैंने आपको बोला था कॉफिशिएंट निकाल के बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पास्कल ट्रायंगल पास्कल ट्री ड्रॉ कर लो। 1 फर्स्ट बार में, सेकंड बार में क्या होता है 1 1, थर्ड बार में क्या होता है 1 2 1, देन क्या हो जाएगा ये आपका 1, ये आपका 3, ये आपका 3, देन आपका ये 1। ठीक है, फिर ये आपका 1, फिर आपका ये और ये 4, फिर ये मिलके 6, फिर ये मिलके 4 और फिर ये आपका 1। उसके बाद ये आपका 1, 4 प्लस 1 5 और 6 प्लस 4 आपका 10, 6 प्लस 4 आपका 10, 4 प्लस 1 आपका 5 एंड अगेन आपका 1। यानी कि ये किसका कॉफिशिएंट है, तो ये आपका कॉफिशिएंट है x प्लस वाई टू दी पावर अगर 5 होगा तो 5 का क्या हो जाएगा, आप ध्यान देना, 5 का हो जाएगा x टू दी पावर 5 प्लस यहाँ 5 है ना, तो 5 x टू दी पावर इससे एक कम यानी कि x का पावर 4 और y का पावर 1 प्लस 10 x का पावर 3 और y का पावर इससे एक ज्यादा यानी कि 2, अगेन प्लस 10 x का पावर 2 और y का पावर 3, अगेन प्लस 5। देखिए 1 5 10 10 1 5 10 10, देन 5 x का पावर आपका हो जाएगा हाँ जी क्या हो जाएगा 5 x का पावर 2 था ना, तो उससे एक कम यानी कि 1 एंड y का पावर 3 से एक ज्यादा यानी कि 4, अगेन y टू दी पावर 5। सिमिलरली अगर आपका 6 जाएगा तो ये आपका 1 जाएगा, 5 प्लस 1 ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 एक मिनट हाँ जी, और लास्ट में फिर आपका 1। तो चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं ऊपर वाले से। तो इसका मतलब ये है कि दिस विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट, 1 किसका वैल्यू हो जाएगा, 1 वैल्यू हो जाएगा 6C0 का। ठीक है, अब आपका 6C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपका 6C1 का वैल्यू 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका 6C2 है तो 6C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है 6C3 है तो 6C3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा।
उसके बाद 64 का वैल्यू, 65 का वैल्यू, 66 का वैल्यू। ठीक है, तो पास्कल ट्रायंगल कुछ भी नहीं है, जस्ट कॉफिशिएंट निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं पास्कल ट्रायंगल या पास्कल ट्रिक, या किसी किसी बुक में इसको पास्कल ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लोग बायनोमियल में एक्सपेंड करते हैं। थैंक यू।